Hello students, welcome you all. Today we are going to start with our 11th chapter of our science subject. The name of the chapter is The Human Eye and the Colorful World. Yes students, in this chapter we are going to study regarding the structure and the functions of various parts of our human eye. In this chapter, we are also going to discuss some of the optical phenomena in nature. We will also discuss about the rainbow formation, about the splitting of white light into 7 colors, about the blue color of the sky, and so on. So, let's explore the colorful world in this chapter. Okay, students? Our first topic is the human eye. As you can see in the figure, students, the human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. Yes, students, we have 5 sense organs. Out of all these sense organs, human eye is the most valuable and sensitive sense organ. Human eye helps us to see the wonderful world and the colors around us. On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch. Yes, अगर हम आंखें बंद कर ले, even if we are closing the eyes, we can identify few objects by their smell, by their taste, or by the sound they make, or by touching those objects. But it is impossible to identify the colors of objects while closing the eyes. Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. Now, let us discuss about various parts of human eyes. Students, you can even refer figure 11.1 of human eye in your NCERT textbook. Okay, you have to draw that figure. Let us discuss the various parts. I will explain you each and every part from that figure. Okay? Students, as you can see in that figure of human eye, figure 11.1 of NCERT textbook, you have to keep the textbook open. The human eye is the sense organ which helps us to see the colorful world around us, as we have discussed. The human eye is like a camera. एक्चुअली कैमरा का जो डिस्कवरी है ह्यूमन आई के हेल्प से ही हुआ है. ह्यूमन आई को ध्यान में रख के ही कैमरा को डिस्कवर किया गया. किस तरह से ह्यूमन आई जो है किसी भी चीज़ को कैप्चर करता है, इसी तरह से कैमरा जो है उसी सिस्टम से बनाया गया है. द लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. Students, you can see the figure of human eye. The back part of the human eye is retina. Here the image is formed. The image of the object is formed on the retina in the eye. The eyeball is almost spherical in shape. Students, you can see the eyeball. It is spherical in shape, okay, with a diameter of about 2.3 centimeter. पूरा जो eyeball है उसका diameter कितना होता है 2.3 centimeter का. The light enters the eye through a transparent membrane called cornea. You can see cornea, students. The outermost layer is transparent membrane के through light जो है अंदर जाता है. Behind the cornea is a muscular diaphragm called iris, which has an opening called pupil. See, the outermost thin layer is cornea. Behind the cornea there is a muscular diaphragm. Diaphragm मतलब layer called iris. है ना. Behind the cornea there is an iris, and this iris has a small opening. आइरिस के बीच में स्मॉल ओपनिंग है, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल. द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. हमारे आंख में कितना लाइट अंदर जाना चाहिए वो कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल. प्यूपिल का साइज़ बड़ा और छोटा होता है और उसके थ्रू ही हमारा लाइट जो है अंदर जाता है आंख के अंदर. द आई लेंस helps to focus the image of the object on the retina. Students, you can see there is an eye lens also, and the light falls on this eye lens and the refraction of the light takes place and the image is formed on the retina. So there is a lens also. जैसे हम चश्मे पहनते हैं ना कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, वैसे हमारे आंखों के अंदर भी लेंस है. There is an eye lens through where the refraction of light takes place and the image is formed on the retina. The ciliary muscles. Students, in the figure you can see there are two ciliary muscles. Okay, these ciliary muscles help us to change the curvature of the lens, eye lens, and to change its focal length. सिलियरी मसल्स के हेल्प से ये जो आई लेंस होता है ना वो अपना कर्वेचर चेंज कर सकता है. मतलब कभी थिन होता है, कभी थिक हो जाता है आई लेंस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस ऑल्सो चेंजेस. So which are the various parts of the eye, human eye?
we have studied about what? So, first of all, retina, image is formed on retina, then cornea, then iris, then pupil, then ciliary muscles, okay, then eye lens. These are the various parts of the human eye. Now, in what way does the working of the eye takes place? The eye lens forms a real inverted image of the object on the retina. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. इमेज कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है. एंड किस तरह का इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना. ये जो आई लेंस है उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है. वी हैव सीन इन द 10th चैप्टर. आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज इज फॉर्म्ड. एंड यहाँ पर किस तरह का इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ सम लाइट सेंसिटिव सेल्स. ओके, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल सेल्स. और ये ऑप्टिकल सेल्स भी दो टाइप के होते हैं. वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, ओके, आफ्टरवर्ड्स. तो दिस रेटिना कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स विच कन्वर्ट दिस इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ये जो ऑप्टिकल सेल्स होते हैं, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है ना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. देन दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कैरिड थ्रू ऑप्टिकल नर्व्स टू द ब्रेन. सो वंस अगेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना. फ्रॉम देयर इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय what? Light sensitive cells. Then these signals are carried by the optical nerves. These are sensory nerves which carry the message to the brain. The brain processes the information. Brain क्या करता है? Information को analyze करता है and sends the message to the eye and then we can see the object. ओके, तो ये जो मैसेज पहले ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको एनालाइज करके फिर रिटर्न में मैसेज भेजता है आई के पास एंड देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ द आई. ओके स्टूडेंट्स, now let us discuss some of these parts of the eyes in detail also. Okay, we are going to discuss regarding the function of iris and pupil once again. Students, we have seen that the amount of light is controlled, okay, by the pupil, okay, entering the eye. Actually the iris controls the amount of light entering the eyes, है ना. द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल. प्यूपिल का साइज़ कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है. और ये साइज़ को एडजस्ट कौन करता है? प्यूपिल के साइज़ को आइरिस. आइरिस के बीच का स्मॉल ओपनिंग को ही हम प्यूपिल बोलते हैं. ओके, तो आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई. इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज as during the daytime, then the iris contracts the pupil, that is makes the pupil small and reduces the amount of light entering the eye. तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम डे टाइम में एकदम बाहर होते हैं ना, जब ज़्यादा धूप होती है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दिस आइरिस reduces the size of the pupil. वो प्यूपिल की साइज़ को छोटा कर देता है, क्योंकि बहुत सारी लाइट एक साथ हमारी आँखों में पड़ती है, तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल की साइज़ को छोटा कर देता है एंड हेंस द लाइट एंटरिंग द आई विल बी इन द लेस क्वांटिटी. Okay, now on the other hand, if the amount of light is received by the eye in small quantity, मतलब सपोज हम कोई अंधेरे में हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होती है? लाइट बहुत कम होती है. एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, द आइरिस हेल्प्स द प्यूपिल टू इंक्रीज इन द साइज. आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को लार्ज कर देता है सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इनटू द आई एंड द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन. द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ प्यूपिल टेक्स सम टाइम. तो आप इसमें आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपने कभी ये देखा है कि अचानक से हम धूप से आते हैं घर के अंदर अंधेरे में, तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है ज़्यादा, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद हमको सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है. सब कुछ अंधेरा पहले लगता है, बाद में क्लियरली दिखाई देता है. तो एक्चुअली होता क्या है, वेन एवर वी आर इन अ डे सनलाइट, व्हाट हैपन्स, द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स स्मॉल, है ना, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. एंड एज सुन एज यू एंटर द रूम, इट टेक्स टाइम टू इंक्रीज द साइज ऑफ द प्यूपिल. जो छोटा हो गया होता है ना साइज प्यूपिल का, उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, तो तब तक आपको सब कुछ अंधेरा लगता है. एक बार आपका प्यूपिल का साइज़ फिर से बड़ा हो जाता है, तो बाद में फिर डार्क में भी आपको क्लियरली दिखाई देता है. दिस इज़ द रीज़न जो आप मोस्टली एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, बट दिस इज़ द रीज़न कि प्यूपिल का साइज़ जो है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सनलाइट. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस रीज़न नाउ. Okay, now students, I will show you the figure also, how the size of the pupil changes. This is the normal eye. Okay, the dark black structure in between is the pupil. ये normal eye है. Now see this figure. When the outside the light is dim, okay, pupil becomes large. Okay, जब लाइट डिम है, डिम मतलब क्या, लाइट बहुत कम है, डार्क रूम में है हम लोग, ओके, तो प्यूपिल देखो कैसे लार्ज हो गया, वो ब्लैक वाला पार्ट एकदम बड़ा हो गया. बट व्हेन आउटसाइड लाइट इज़ ब्राइट ना, जब एकदम ब्राइट मतलब डे लाइट में आप लोग हो,
तो प्यूपिल साइज बिकम स्मॉल। देखो बीच का डॉट कैसा हो गया, एकदम छोटा हो गया है। सो डिम लाइट में प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है एंड ड्यूरिंग द ब्राइट लाइट प्यूपिल का साइज क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। ओके स्टूडेंट्स, now students, I have told you that our retina consists of light sensitive cells, मैंने optical cells नाम दिया था। There are two types of light sensitive cells on the retina. रेटिना के ऊपर दो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स, ये फिगर यहाँ पे दिखाया हुआ है। यू डोंट हैव टू लर्न द फिगर, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस फिगर। रॉड्स और कोन्स का फिगर हमको नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेट अस डिस्कस देयर फंक्शंस, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड सेल्स और द रॉड्स, खाली रॉड्स बोलते हैं, आर द फोटो रिसेप्टर सेल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स? लाइट रिसीविंग सेल्स, लाइट को रिसीव करते हैं इन द रेटिना ऑफ द आई दैट कैन फंक्शन इन लेस इंटेंस लाइट देन अदर टाइप्स ऑफ विजुअल फोटो रिसेप्टर्स। ओके, मतलब जब लाइट एकदम लेस का क्वांटिटी में आ रही है, एट दैट टाइम रॉड सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन। Understood? When the light is in less intensity, when there is a less amount of light, at that time rod cells take their functions. But cone cells are of the other type of the photoreceptor cells. Okay, they are also present on retina, which are responsible for the color vision as well as the eye color sensitivity. They function best in relatively bright light as opposed to the rod cells. Okay, तो हमने क्या देखा कि रॉड सेल्स हमेशा कम लाइट इंटेंसिटी में काम करते हैं, बट कोन सेल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस कलर्स। हम लोग ये जो ब्राइट कलर्स को पहचान सकते हैं ना, ये सारे किसके कारण होते हैं? बिकॉज ऑफ द कोन सेल्स। अंडरस्टूड? एंड दिस कोन सेल्स दे फंक्शन बेस्ट व्हेन वी आर इन द ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में कोन सेल्स काम करते हैं और लेस इंटेंसिटी वाले लाइट में रॉड सेल्स काम करते हैं। सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द आई विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार। ओके स्टूडेंट्स, now students, let us discuss the topic that is power of accommodation of the eye. Okay, let us first of all define this. What is the meaning of the power of accommodation of the eye? The ability of the eye lens to see both near and distant objects by adjusting its focal length is called the power of accommodation of the eye. Students, our eye lens, हमारे आई के अंदर जो आई लेंस है ना, इट हैज़ एन एबिलिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। ये अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है हमारा आई लेंस, टू सी द नियर एंड द डिस्टेंट मीन्स फार ऑब्जेक्ट्स। कभी हम पास की चीज़ देखते हैं, कभी हम दूर की चीज़ देखते हैं। तो पास की और दूर की चीज़ देखने के लिए हमारे आँखों में जो आई लेंस है, वो अपनी फोकल लेंथ को बार बार चेंज करता रहता है, एडजस्ट करता है। ओके, एंड दैट एबिलिटी ऑफ दैट ऑफ आई लेंस is called power of accommodation of the eye. Once again, let me define the ability of the eye lens to see both near and distant objects by adjusting its focal length. Eye lens has to adjust its focal length to see the near or the far objects, and this ability of adjusting the focal length is called power of accommodation of the eye. Let us explain it. The eye lens, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं ना कि आई के अंदर भी लेंस है। द आई लेंस इज कम्पोज ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। ये फाइबर से बना हुआ एकदम जेली लाइक मटीरियल होता है आई लेंस। इट्स कर्वेचर मीन्स साइज, ओके, कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। यू कैन, हमने सिलियरी मसल्स का रोल देखा है स्टूडेंट्स ह्यूमन आई में, दैट सिलियरी मसल्स चेंज द साइज ऑफ द आई लेंस, कर्वेचर। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। जब आई लेंस का साइज चेंज होता है तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाता है। कैसे? when the ciliary muscles are relaxed, when the ciliary muscles are relaxed, the lens becomes thin. जब ciliary muscles relax करते हैं तो eye lens becomes thin, and when the eye lens becomes thin, the focal length of the eye increases. Okay, let me explain you the sequence. When the ciliary muscles are relaxed, the ciliary muscles relax करते हैं, the eye lens becomes thin and the focal length increases. But when the ciliary muscles contract, जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन द आई लेंस बिकम्स थिक, वो थिक हो जाते हैं, आई लेंस मोटे हो जाते हैं, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई डिक्रीजेस. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे द आई लेंस बिकम्स थिन एंड थिक एंड द फोकल लेंथ चेंजेस अकॉर्डिंगली. ओके, नाउ वी हैव टू डिफाइन टू थिंग्स, 2 points, दैट इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. नियर पॉइंट मतलब पास में से कितना पास तक आप देख सकते हो क्लियरली, और फार पॉइंट मतलब कितनी दूर तक आप क्लियरली देख सकते हो. Near point, the minimum distance
at which the eye can see objects clearly is called the near point or the least distance of the distinct vision. For a normal eye it is 25 centimeter. Students, आप अपनी आँख और बुक के बीच में मिनिमम 25 मीटर्स का डिस्टेंस रखोगे तो आप आराम से बुक को रीड कर सकते हो. ट्राई टू ब्रिंग द बुक नियर योर आई. धीरे धीरे एकदम आँख के पास लेके आओगे ना, यू कैन नॉट सी द अल्फ़ाबेट्स. आप देखना पूरे अल्फ़ाबेट्स ब्लर हो जाएंगे व्हेन यू ब्रिंग द बुक वेरी क्लोज टू योर आई. सो अपने पास वाली बुक को भी रीड करने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, एंड दैट मिनिमम डिस्टेंस इज व्हाट? नियर पॉइंट. एंड द नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज़ 25 सेंटीमीटर. हमारी आँख और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ही हम उसको क्लियरली देख सकते हैं. उससे भी अगर आप पास में लेके आओगे देन इट विल नॉट बी विजिबल क्लियरली. नाउ व्हाट इज़ अ फार पॉइंट? द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द फार पॉइंट. दूर से दूर कितना आप देख सकते हो उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं. एंड फॉर ए नॉर्मल आई इट इज़ बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी. 25 सेंटीमीटर के बाद से आप इन्फिनाइट डिस्टेंस तक दूर तक आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है. सो द फार पॉइंट इज़ इन्फिनाइट. ओके, नियर पॉइंट इज़ 25 सेंटीमीटर बट द फार पॉइंट इज़ बिटवीन 25 एंड इन्फिनिटी. Okay students, so this is very important topic. What is power of accommodation of the eye? The power of accommodation means ability of the eye lens to change its what? Focal length, है ना, to see the near and the distant objects. And then we have defined near point and far point. Okay. Now students, let us discuss why do we have two eyes for vision and not just one. हमारी दो आँखें हैं तो क्यों दो है, क्यों एक नहीं है, और दो है तो क्या फ़ायदा है. देर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ आवर हैविंग टू आइज़ इंस्टेड ऑफ वन. इट गिव्स अ वाइडर व्यू फील्ड ऑफ व्यू. हम दो आँखों से ज़्यादा वाइड एरिया देख सकते हैं. अ ह्यूमन बींग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री विथ वन आई एंड ऑफ अबाउट 180 डिग्री विथ टू आइज़. अगर हम एक ही आँख से देखें ना तो हम 150 डिग्री जितना एंगल ही कवर कर सकते हैं, इतना एरिया ही. बट अगर हम दोनों आंखों से देखें तो वी कैन कवर द व्यू ऑफ 180 डिग्री अराउंड अस. अंडरस्टूड? द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहांस्ड विथ टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन. फेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स अगर डल होते हैं ना तो उसको एक आंख से की बजाय अगर हम दो आंख से देखें, इंस्टेड ऑफ सीइंग विथ वन आई, इफ वी आर यूजिंग टू आइज यू कैन सी दैट फेंट ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली. ओके. सम एनिमल्स, यूजुअली प्रे एनिमल्स, प्रे मीन्स they have their two eyes positioned on opposite sides. प्रे मतलब जिनको कोई और एनिमल्स खा जाते हैं. अंडरस्टूड? तो उनको हम बोलते हैं प्रे एनिमल्स. अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स होते हैं. इंसेक्ट्स को क्या होता है, कुछ है ना फ्रॉग जैसे खा जाते हैं. ओके, तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं. तो और जो जैसे चमीलियन होते हैं, दिस आर ऑल प्रे एनिमल्स. तो यूजुअली प्रे एनिमल्स दे हैव देयर टू आइज पोजिशनड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ देयर हेड्स. इनके हेड के दो ऑपोजिट साइड होते हैं, टू आइज. To get why they have two opposite side eyes? To get the widest possible field of view, ताकि वो चारों दिशाओं में देख सके. हमारे में क्या है, in the front of our head we have two eyes, but our two eyes are positioned on the front of our heads and thus it reduces our field of view in favor of what is called stereopsis. Stereopsis का मतलब हम खाली सामने ही हम देख सकते हैं 180 डिग्री एंगल तक. We cannot see at the back. Shut one eye and the world looks like flat, two-dimensional. If you are shutting on one eye and looking with one eye only, you will get only two-dimensional view. जब हम दोनों आँख खोलते हैं तो हमको three-dimensional view दिखता है. Understood? Keep both the eyes open and the world takes on the third dimension of depth. Okay, because our eyes are separated by a few centimeters, each eye sees a slightly different image. Our brain combines the two images into one, using the extra information to tell us how close or far away things are. देखो इधर कितना हमारा ब्रेन शार्प है. हमारी दोनों आंखें सेम चीज़ को देखती है. दे क्रिएट स्लाइटली डिफरेंट इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. ये दोनों इमेज ब्रेन के पास जाते हैं. ब्रेन मर्जेस बोथ द इमेजेस एंड फॉर्म अ सिंगल इमेज और हमको बताता है कि यस हम वो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं. अंडरस्टूड? इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट. ओके, सो वी हैव टू आइज विच इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर human beings. Students, sometimes the eyes may gradually lose its power of accommodation. We all know that what is the meaning of power of accommodation? It is the
चेंजिंग ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. ओके, आई लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. बट समटाइम्स ड्यू टू सम रीजन्स द आई लेंस कैनॉट चेंज इट्स फोकल लेंथ. ओके, वो अपना साइज चेंज नहीं कर पाता है. इन सच कंडीशंस द पर्सन्स कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली. ऐसे कंडीशंस में पर्सन जो है ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता है. द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई. द विजन बिकम्स ब्लर्ड. ब्लर्ड मीन्स व्हाट? धुंधला हो जाता है. ओके, एंड दीज आर कॉल्ड द डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ओके, इन ह्यूमन बींग्स देर आर 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मायोपिया. Myopia is also called nearsightedness. Okay, it is also called nearsightedness. The second disease is called hypermetropia, which is also called farsightedness. Okay, and the third disease is called presbyopia. Which are the 3 common defects of vision? Myopia or nearsightedness, hypermetropia or farsightedness, presbyopia. Okay, apart from this disease there is one more disease called cataract, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं. Okay, so this cataract is also there. We will also discuss about that defect also. Now first of all let us go for the short note of these 3 defects. Each and every defect का आपको अलग सा short note learn करना है. Okay students? Yes, let us start with each and every defect of vision. The first type of defect of vision which we are going to study is myopia. Myopia is also known as nearsightedness. Actually, myopia is a defect of vision in which a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly. Okay, एक्चुअली क्या होता है इस डिफेक्ट में, लोगों को पास की चीज़ दिखाई देती है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है. जनरली आप बच्चे स्टूडेंट्स, आप लोगों में ये डिफेक्ट होता है. यू कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट बोर्ड पे क्या लिखा है क्लास में दूर से वो हमको नहीं दिखता है कई बार, तो हम चश्मे पहनते हैं. तो दैट डिफेक्ट इज़ कॉल्ड मायोपिया और नियर साइटेडनेस. Why it is called nearsightedness? Because we can see the near objects clearly, so it is called nearsightedness. We cannot see the far objects clearly. Okay, now what happens actually, students? You can see I have shown you the diagram also. The first diagram shows a myopic eye, मतलब ऐसा disease जिसमें myopia हो गया है. तो actually what happens when the rays are coming from the far distance? Students, in the 10th chapter we have seen that when the rays are coming from far distance, they come parallelly. After refraction through the eye lens, they are forming the image before retina, है ना, in the front of retina. इमेज बनना कहाँ पे चाहिए? रेटिना के ऊपर, लेकिन रेटिना के पहले बन जा रहे हैं. So this is the defect of myopia. Here the image is formed before retina, and due to which the far object is cannot be seen clearly. Okay, now how can this defect be corrected? इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? by using concave lens. हम जो चश्मा पहनते हैं ना, वो कॉन्केव लेंस है वो. ओके, क्योंकि हमको दूर की चीज़ नहीं दिख रही है. बाय यूजिंग दैट कॉन्केव लेंस, सी सेकेंड फिगर है ना, हियर कॉन्केव लेंस इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ आईज. ओके, नाउ व्हेन द लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रिफ्रैक्ट फ्रॉम द कॉन्केव लेंस. एक रिफ्रैक्शन कॉन्केव लेंस पे होगा, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ पर होगा? आई लेंस में होगा, एंड देन द इमेज विल फॉर्म, ऑल द रेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना. Okay, so the image will be formed on retina and we can see the far of objects very clearly. Okay, so the first figure is the defect and the second figure is the correction. आपको दोनों figures करने के. Okay, now the reason why does this defect occurs? होता क्या है इस defect में? तो see, there are 2 reasons. Either by the increase in the curvature of the eye lens. Sometimes what happens, the eye lens increases in the curvature, उसका साइज जो है मोटा हो जाता है ना, थिक हो जाता है आई लेंस. ओके, एंड सेकेंड इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल. हमारा आई बॉल जो है ना, पूरा आई का जो साइज है वो कभी लेंथ में इंक्रीज हो जाता है. सो दीज आर द 2 रीजन्स ऑफ मायोपिक आई. ओके, लेट मी शो यू वन मोर फिगर ऑफ मायोपिक आई. ओके, ये 3 डायग्राम साथ में दिखाऊंगा मैं मायोपिया का. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू रेफर फिगर 11.2 for this diagrams. Okay, figure 11.2 जो फिगर आपको NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, that is the figure, 3 figures जो दिए हुए हैं. even if you are not drawing the first figure it is okay. B and C, the second and the third figure, जो सेकेंड फिगर है वो डिफेक्ट बताता है और जो थर्ड फिगर है वो करेक्शन बताता है. ओके, दीज 2 फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आपको पहले मायोपिया क्या होता है और डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है. देन यू हैव टू गिव द रीज़न why does this disease occurs, and then how can we correct this disease by using suitable concave lens.
Okay, and the diagrams are also important. So this is the first defect, that is myopia. Now let us discuss the second defect. Students, the second defect which we are going to study is hypermetropia or far sightedness. नाम से आप समझ गए होंगे, it is the defect of vision in which the person can see far objects clearly but cannot see the nearby objects clearly. स्टूडेंट्स, ये डिफेक्ट मोस्टली किस में होता है? एल्डर पीपल में. हमने देखा है हमारे दादा लोग ऐसे जो होते हैं, ओके, दे कैन सी द, जब वो बाहर कहीं पे घूमते तो चश्मा नहीं पहनते हैं, लेकिन जब पेपर न्यूज़पेपर कुछ रीड करना होता है तो वो चश्मा पहनते हैं क्योंकि उनको पास की चीज़ नहीं दिखती है. मीन्स दे कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट दे कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. So this defect is called hypermetropia, okay, or far sightedness. Why far sightedness? Because far objects can be seen clearly, the near objects cannot be seen clearly. And what happens actually in this? In this you can see that the rays are meeting behind retina, है ना. रेज को कहाँ पे मीट होना चाहिए? रेटिना के ऊपर. एंड यू कैन सी इन द फर्स्ट फिगर दैट द रेज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, so the object cannot be seen, nearby object cannot be seen clearly. And what is the reason for this hypermetropia? The first reason is either decrease in the curvature of eye lens or decrease in the length of eyeball. जैसे मायोपिया में क्या देखा था? दोनों इंक्रीज था, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल. यहाँ पे दोनों का क्या है? डिक्रीज है. एंड हाउ कैन वी डू द करेक्शन? ये जो हमारे दादा लोगों में ये जो डिजीज़ होती है आंखों की, तो वो लोग क्या चश्मा पहनते हैं? वो लोग जो चश्मा पहनते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस. अंडरस्टूड. नाउ यू कैन सी द सेकेंड फिगर. जब कॉन्वेक्स लेंस पहना है तो फर्स्ट द रेज आर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, then again they are getting refracted by the eye lens and the image is formed on retina, and so the nearby objects can be seen clearly. So this is the second defect of vision. Okay students, now the third type of defect of vision which we are going to study is presbyopia. Presbyopia is a defect of vision in old people. Okay, इसमें क्या होता है? Here the some old people, they can neither see the near objects clearly or the far objects also clearly. पास का भी चीज़ नहीं देख सकते, दूर का भी चीज़ नहीं देख सकते. Actually why does this happens? This happens because of the weakening of ciliary muscles. ये हमारे सिलियरी मसल्स होते हैं ना, जो आई लेंस को थिक या थिन करते हैं, वो सिलियरी मसल्स ही वीक हो जाते हैं, ड्यू टू विच द आई लेंस डज नॉट बिकम्स फ्लेक्सिबल. आई लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है. Okay, so they cannot see the nearby object also or the far object also clearly. Okay, at that time what they will do? At that time they have to use the glasses. जो glasses पहनना होता है ना, वो होता है bifocal lenses. क्या होते हैं वो? Bifocal lenses. Okay, it can be corrected by using bifocal lenses. And what is the meaning of the word bifocal lenses? वो जो चश्मा होता है ना, उसमें दोनों लेंस होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स. ओके, upper part of the glasses is concave and the lower part is called convex. Understood? upper part जो होता है, ऊपर का पार्ट concave होता है, वो दूर की चीज़ देखने के लिए, और नीचे है ना गोल गोल पार्ट. कभी आपने अपने दादा का किसी का चश्मा देखा होगा ना, उनके नाक के इधर का जो चश्मे का पार्ट होता है ना, उधर गोल गोल होता है, वो है ना अलग होता है, और ऊपर का पार्ट अलग होता है. द अपर पार्ट इज़ यूज फॉर सीइंग द far off objects and the lower part is the convex lens which is used for seeing the near objects. पेपर रीडिंग के टाइम पे लोअर पार्ट से रीड करते हैं और दूर देखना होता है अपर पार्ट से. सो दिस इज द presbyopia in which the person can neither see the nearby or the far off objects clearly. Okay, and for correcting this disease they use bifocal lenses. We don't have any diagram for this disease. Okay students, so by this we finish the three defects of vision: myopia, hypermetropia and then presbyopia. Okay, now students, I have initially told you that apart from these three defects of vision, sometimes people also suffer from a defect called cataract. It is also a defect of eye, mostly in age old people. Okay, this disease is occurred. कैटरैक्ट इसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद. एक्चुअली इसमें क्या होता है, आंखों में से है ना मिल्की लिक्विड निकलता रहता है. कैटरैक्ट इज ए क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इनसाइड द आई विच लीड्स टू ए डिक्रीज इन विजन. हमारे आई लेंस के ऊपर क्लाउडिंग, एक क्लाउड वाला मटेरियल जैसे बन जाता है. ओके, जिसके कारण हमारा विजन जो है, आँख के देखने की शक्ति कम हो जाती है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड इज़ कन्वेंशनली ट्रीटेड विथ सर्जरी.
ओके, वेन एवर कैटरैक्ट ऑकर्स इट कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, आई सर्जरी होती है जिससे हम ये कैटरैक्ट डिजीज़ को हम ठीक कर सकते हैं. ओके, द विजुअल लॉस ऑकर्स बिकॉज opacification of lens obstructs light from passing and being focused on the retina at the back of the eye. What is the meaning of this statement? ये विजुअल लॉस क्यों होता है कैटरैक्ट में? एक्चुअली आइलेंस के ऊपर एक क्लाउडी लेयर बन जाता है, तो आइलेंस के ऊपर एक क्लाउडी लेयर बन गया तो लाइट अंदर जाता ही नहीं है. अब लाइट अंदर जाता नहीं है तो रेटिना के ऊपर इमेज बनता नहीं है, क्योंकि बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया आइलेंस के सामने. ओपेसिफिकेशन मीन्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस. लेंस के ऊपर एक क्लाउडी लेयर बन जाता है, अंडरस्टूड, ओपेक लेयर, जिसके कारण लाइट अंदर जाता नहीं है, रेटिना के ऊपर गिरता नहीं है, तो इमेज नहीं दिखता है. ओके, इसके लिए कैटरैक्ट डिजीज़ होता है. इट इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एजिंग, एज होते होते ये डिजीज़ आता है, एंड बट हैज़ मेनी अदर कॉजेज ऑल्सो. कुछ और भी रीजन्स है, बट एज बढ़ते बढ़ते ये डिजीज़ कॉमन हो जाता है, एंड इट कैन बी ट्रीटेड विथ आई सर्जरी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द वन मोर टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन. Now students, if you look on page number 191 of your NCERT textbook, you will see about an article. Box में एक article दिया हुआ है. Here they are telling us to donate our eyes after the death. About 35 million people in the developing world are blind and most of them can be cured. हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी जो है 35 million people ऐसे हैं जो blind है. Okay, and among them about 4.5 million people with corneal blindness, है ना. 35 मिलियन में से 4.5 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनकी ब्लाइंडनेस क्या है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, एंड इट कैन बी क्योर्ड विद द कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आइज. कोई अगर अपने डेथ के बाद अगर आई डोनेट करता है तो उसमें से कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करके, है ना, ये जो 4.5 मिलियन पीपल है इनकी आई साइट आ सकती है. आउट ऑफ दिस 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 12 साल से भी कम एज वाले बच्चे हैं इसमें. तो इनको अगर आप अपना गिफ्ट ऑफ विजन देते हो, ओके, तो कितना अच्छा दे कैन सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड. ओके, आई डोनर्स कैन बिलोंग टू ऑफ एनी एज और एनी सेक्स. ओके, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी एज ग्रुप का, है ना. इवन इफ़ यू आर यूजिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहनते हो, भले आपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा है, स्टिल यू कैन डोनेट द आइज, है ना. इवन द डायबिटिक पीपल, हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट्स, दे आर ऑल्सो कैन डोनेट देयर आइज. बट आइज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ. ओके, कोई भी हेल्दी पर्सन हो उसके डेथ के बाद जस्ट 4 से 6 घंटे में आइज जो है रिमूव कर देने का. ओके, इमीडिएटली नियरेस्ट आई बैंक को अगर आप इन्फॉर्म कर दोगे तो दोज डॉक्टर्स कैन कम एंड दे विल डू द प्रोसेस ऑफ दिस thing. Okay, eye removal takes only 10 to 15 minutes. It's a simple process and does not leads any disfigurement. ऐसा लगेगा भी नहीं कि कुछ ज़्यादा कुछ हुआ है करके. ओके, सिंपल 10-15 मिनट का प्रोसेस होता है. ओके, सो दिस आई ट्रांसप्लांटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि डेथ के बाद, हमारे डेथ के बाद हम अपना आइज़ डोनेट कर सकते हैं. बहुत सारे लोग जो है लिख के जाते हैं कि मेरी डेथ के बाद मेरे आइज़ को डोनेट कर देना करके. सो इट्स गुड. सो रीड दिस आर्टिकल स्टूडेंट्स. ओके students, by this we end our today's session. Students, today we studied regarding the structure of human eye and the functions of various parts of the eyes. Then we have seen regarding the accommodation power of the eye and its near and the far point. Okay, then we have seen regarding the various defects of vision and their correction also, which is a very very important topic regarding examination point of view. Okay students, we will continue with the other topics in the next session. Till then, go through this video carefully and be safe. Thank you students.